reduces to a to a single force in space. Yes, ये हम कंडीशन देखना चाहते हैं, इसे करस्पॉन्डिंग क्या होगी। तो इसके स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं कि एक इसी करस्पॉन्डिंग ले लेते हैं। द सिस्टम ऑफ ए फोर्सेस acting on a body, rigid body, reduces to a single force F, acting at some arbitrary point O with the couple having moment G. That is, which is defined like that. This one, and now this is defined as O or a O dash, and let us be any point Q, और ये ले लेते हैं. This one is point P, correct? And is corresponding is let us suppose that this point is A and this is any point C. This is the R is the direction, and this angle is, let us suppose that the angle between them is theta, correct? This is theta, and therefore O dash corresponding to this, yes. Then let us this be A dash point. Then this is also become a G cos theta, and here is also is a G cos theta. According to this, if we do horizontal of this, now let theta be an angle. Let theta is the angle. Let theta is the angle between the direction of forces between, let theta is the angle between the direction of force OA and the axis of couple OA and the axis of couple OP. If X, Y, Z are the components of a force R along the coordinate axis LMN are the LMN and the components of the G having the direction cosines of X by R, Y by R and Z by R. Yes, the direction cosines of the line OOP are, the direction cosines of the line OP are L by G, yes, M by G and N by G, correct? And then the angle theta, that is cos theta, which is equal to Lx plus My plus Nz, yes, and divided by Rg, correct? And this implies that ये क्या हो जाएगा, Lx plus My plus Nz is equal to Rg cos theta. Yes. Now from the earlier theorem जो हम लोगों ने इससे पहले प्रूव करी थी, by the theorem of the system of equivalent to a single forces acting along a central force at axis O dash A dash of a couple of a moment G cos theta along the point O dash and A dash, and then the couple of a force O dash A dash, if the angle theta is equal to pi by 2, then cos theta is equal to 0, and the system reduces to a single force R
that is, so that cos theta is equal to 0, cos theta is equal to 0, and this implies that Lx plus my plus nz is equal to 0. तो ये हमारी हो गई कि दैट इज़ ए कंडीशन दैट इज व्हेन द जनरल सिस्टम ऑफ ए फोर्स इज एक्टिव टू ए फोर्स टू ए सिंगल फोर्स इन ए स्पेस। और हम इसके बाद में नेक्स्ट हम ले रहे हैं इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपको इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उनके लिए हम बताते हैं आपको कैसे हम करेंगे। तो हम बता रहे हैं इसको इनवेरिएंट क्वांटिटीज़, करेक्ट, क्वांटिटीज़। कोशिश है कि हम इसमें जितने भी स्टेप्स हैं मेनली वो हम आपको सब क्लियर करा दें। द क्वांटिटीज़ Lx प्लस My प्लस Nz एंड x square plus y square plus z square are invariants for a given system of forces, whatever the origin and axis. And so this is defined as r square is equal to r square. This is defined as the x square plus y square plus z square, and similarly g square, which is defined l square plus m square plus n square, equation number 1. In the direction cosines in the direction of a force r are x by r, y by r, z by r, and the axis of couple having the direction cosines L by g, m by g, and n by g. And the angle theta between these can be written as, इससे पहले हमने डिफाइन ही किया था, cos theta is equal to Lx plus My plus Nz, and this divided by Gr, yes, and Gr, and that is this is equal to, or this implies that ये आपका क्या हो जाए Lx plus My plus Nz, this is divided by r, is equal to g cos theta. Yes, equation number, let us suppose that the equation number 2. So we have the central axis of the system is unique, so that the force is r, and the couple of moments g cos theta along the central axis are the invariable, and the invariance of r, invariance of r means under root of x square plus y square plus z square is invariant, that is x square plus y square plus z square is invariant. Invariance of g cos theta means Lx plus My plus Nz divided by r is invariant, that is Lx plus My plus Nz is invariant. And if we define according to the pitch, if P is the pitch and which is equal to, हम define कर चुके हैं इससे पहले definition पे, K by R, तो which is equal to G cos theta and divided by R, this is again is equal to Lx plus My plus Nz divided by R, and this is again is equal to Lx plus My plus Nz divided by x square plus y square plus z square. तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई। ये इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ के बारे में हमने डिफाइन करा दिया। इनवेरिएंस ऑफ आर क्या होता है, जी कॉस थीटा, इसका इनवेरिएंस क्या होता है, ये क्या होता है। इसके बाद अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस।
उसके बाद की जो कुछ इक्वेशंस हैं बस उसके बाद में बस यही है इक्वेशन ऑफ ए सेंट्रल फोर्सेस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं उनको हम और डिफाइन किए दे रहे हैं। चलिए हम इसको लेते हैं इक्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। करेक्ट, सेंट्रल एक्सिस ऑफ एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस। करेक्ट, चलिए इसको हम लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं। सपोज दैट इसी तरीके से जैसे हमने इससे पहले वाले किया था उसी करस्पॉन्डिंग में ले लेते हैं। फोर्सेस को हम को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने किया था वैसे ले लेते हैं। जैसे आपका ये है और वही आपका इन्वेलेंस वाला ले लेते हैं। ये हो गया, सी पॉइंट हो गया, इसी करस्पॉन्डिंग ओ को क्यू पॉइंट ले लिया और ये हमारा पी पॉइंट है। करेक्ट, ठीक है। और इसी करस्पॉन्डिंग ये हमारा जी हो कपल का और ये हमारा जी कॉस थीटा हो गया। अगर एंगल थीटा हो ये हमारा जी कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी करस्पॉन्डिंग अगर हमें ये ओ पॉइंट है, ये ओ डैश पॉइंट है, ए डैश पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी करस्पॉन्डिंग जी कॉस थीटा हो जाएगा पैरेलल टू दिस वन। Suppose the system of forces is equivalent to Rg, where R and G are given, तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एंड सिमिलरली G स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। करेक्ट, x हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ एक्स आई, y क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ वाई आई, सिग्मा ऑफ एक्स वन। ये सिग्मा आई इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम इसके फॉर्म में करेक्ट कर देते हैं, वाई आई वेरिंग टू 1 to n2 है, ये हम इसे 1E1 करके लिख रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और सिमिलरली अगर हम 1E1 में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरली जेड को हम लिखे दे रहे हैं सिग्मा ऑफ Z1 और L, ये सब चीज़ें हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। Y1 Z1 माइनस Z1 Y1 और M हमारा क्या है, सिग्मा Z1 X1 माइनस X1 Z1 और सिमिलरली N हमारा क्या है, सिग्मा X1 Y1 माइनस Y1 X1, where the forces F of X1 Y1 or Z1, yes, this is one, along the some points. Let us suppose that X1 Y1 Z1. Let us take a point O A B C O dash. Let us take point O dash at a point A B C, O dash to a point A B C on the central axis, and O dash remains the invariant for finding the new values of L dash, M dash and N dash of L, M and N about the line through O dash. Yes, about the line through O dash. Now we have changed the coordinates. This can be written as now we have changed x1 y1 z1 by x1 minus a y1 minus b z1 minus c। यस, अगर हम इसको पॉइंट्स को ओ को हम ओ डैश पे ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे पॉइंट्स हमारे। तो इसे करस्पॉन्डिंग ये हमारी एक्सिस क्या बन जाएंगी। अब आप ये देखिएगा यहाँ पे एल आपका क्या हो जाएगा, एल डैश क्या हो जाएगा, एल डैश हमारा डिफाइंड हो जाएगा, दिस इज डिफाइंड एज द सिग्मा वाई आई। इसको हम अगर दोनों की करस्पॉन्डिंग रखते हैं पॉइंट से करस्पॉन्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, y1 माइनस बी पॉइंट। करेक्ट, और ये z1 हो गया माइनस ये हमारा हो गया Z1। करेक्ट, Z1 माइनस सी पॉइंट है
और इसी करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गया y1 हो गया, करेक्ट। और सिमिलरली इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में अगर ब्रेक करते हैं तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा ऑफ y1 z1 माइनस z1 y1, करेक्ट। और z1 y1 और ये हो जाएगा माइनस बी और सिग्मा ऑफ z1 प्लस c और सिग्मा y1, करेक्ट। और ये सब आप क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाए, l हो गया माइनस बी जेड और प्लस सी वाई। लेट अस सपोज द इक्वेशन नंबर 1, ये हम मान लेते हैं कि एल डैश तो हमारा ये आ गया। सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस वी कैन फाइंड एम डैश भी ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। तो एम डैश हमारा क्या आ जाएगा, एम माइनस सी एक्स प्लस ए जेड। और सिमिलरली हमारा एन डैश भी आ जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऑन द सेम लाइंस एन माइनस ए वाई प्लस बी एक्स, करेक्ट। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दिए दे रहे हैं और इसको नंबर 3 दिए दे रहे हैं, करेक्ट। एंड द पॉइंट ओ डैश लाइन ऑन द सेंट्रल एक्सिस, देन एल डैश बाय एक्स is equal to m dash by y is equal to n dash by z। दिस के अब हम इन सारे पॉइंट्स को रख देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, l माइनस बी जेड प्लस सी जेड, यस, प्लस सी वाई, सॉरी, प्लस सी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इज आल्सो इज इक्वल टू m माइनस सी वाई एक्स प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय वाई, एंड दिस इज अगेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के आगे हम लिखे दे रहे, ये हो जाएगा एन, यस, एन हो गया माइनस ए वाई प्लस बी एक्स और डिवाइडेड बाय जेड, करेक्ट। ये सब हमारा इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स, है ना, ये हमारा हो जाए एक्स। और ये पॉइंट अगर हम इनको लेते हैं, क्लियर करते हैं, तो क्या हो जाए एक्स एल माइनस बी जेड प्लस एल माइनस बी जेड प्लस सी वाई, करेक्ट। और प्लस वाई में क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा एम माइनस सी एक्स प्लस ए जेड और प्लस जेड में क्या आ जाएगा एन माइनस ए वाई प्लस बी एक्स, करेक्ट। और इस होल डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, करेक्ट। ये बराबर क्या हो जाएगा, एल एक्स, बाय द डेफिनेशन वी कैन से दैट एल एक्स, ये क्या हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, है ना। और ये डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये सब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम लोग क्या ले सकते हैं, चलिए लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इन सब को हम क्या ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू के बाय आर, ठीक है। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ऑन द जनरलाइजेशन वी गेट द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। अब सेंट्रल एक्सिस की हम इक्वेशंस क्या ले सकते हैं, सेंट्रल एक्सिस एल, अब इसी करस्पॉन्डिंग अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो निकाल सकते हैं कि एल माइनस वाई जेड, यस, माइनस जेड वाई, यस, डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, और इज अगेन इज इक्वल टू वाई, ये जो आपने इक्वेशंस वगैरह लिखी थी ये लिख दिस एंड दिस, ये हमारा के बाई आर का आ गया। तो इन सब इक्वेशंस को हम लोग क्या ले सकते हैं, एम माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड, ठीक है, और डिवाइडेड दिस डिवाइडेड बाय वाई और डिवाइडेड बाय ये एन के फॉर्म में लिख लेते हैं, एन माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, यस, और ये डिवाइडेड बाई लिख दे रहे हैं जेड। ये सब बराबर किसके हो गया, के बाई आर, और के बाई आर को हमने क्या डिफाइन किया था, इससे पहले पीस डिफाइन किया था, पी डिफाइन किया था, यस, पी इज द पीस। तो ये हमारी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस, क्लियर। अब हम चलो नेक्स्ट
इसके आगे का थोड़ा इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे अपना, ठीक है, यहाँ पर हम ऐड किए